A very good morning, students. This lecture, in this lecture, we'll study about the focusing type of the collector. In the last lecture also, we have studied about the focusing type of the collector. Now, yesterday we have studied that focusing type or the concentrating collectors are basically divided into two types, that is line focusing and point focusing. And we have also studied about the line focusing collectors, which was subdivided into five categories, that was parabolic, mirror strip, Fresnel lens, flat plate collector with adjustable mirrors, and compound parabolic concentrator. So the detail about parabolic trough collector has been elaborated by me in the previous lecture. In this lecture, we will focus on the second one, that is mirror strip reflector. So we'll study about the mirror strip reflector. In mirror strip reflector, now in order to know what is the mirror strip reflector, just first let us know what it is actually. It is actually a structure in which a number of plane or slightly curved concave mirror strip are mounted on a flat base, right? So this is a type of reflector in which a number of plane or slightly curved concave mirror strip are mounted on a flat base. The angles of the individual mirror are such that they reflect solar radiation from a specific direction onto the some focal line. The angles of the mirror must be adjusted to allow for the changes in the sun's elevation. देखो ऐसा है कि अगर हम मिरर स्ट्रिप रिफ्लेक्टर के बारे में पढ़ें या जो लास्ट था पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर के बारे में मैंने बताया था, तो इन दोनों में जो हमें बेसिक चीज फोकस करनी है वो उसके स्ट्रक्चर के ओरिएंटेशन पे फोकस करनी है। स्ट्रक्चर के ओरिएंटेशन पे फोकस करेंगे तभी हमें सोलर एनर्जी की रेडिएशन, ठीक है, एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ठीक है, जैसा उसका ओरिएंटेशन होगा, जैसे लास्ट में मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन जो है उससे ज्यादा सोलर एनर्जी हमारी कलेक्ट होती है इन कंपैरिजन टू ईस्ट वेस्ट अरेंजमेंट। तो हमारा अरेंजमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है कि उस सरफेस का, उस जो कलेक्टर सरफेस है उसका ओरिएंटेशन क्या है। लास्ट में हमारा था नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन, अब हम इसमें बात करेंगे कि इसका ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इट इज अ टाइप ऑफ reflector in which a number of plane or slightly curved, that is concave mirror strip are mounted on a flat base. पहले तो एक फ्लैट बेस पे हमारे बहुत सारे कर्व कॉन्केव मिरर एक जगह माउंट किए जाते हैं। ठीक है, the angles of the individual mirrors are such that they reflect the solar radiation from a specific direction onto the same focal line, right? तो जो भी आपका सोलर रेडिएशन इंडिविजुअल मिरर से रिफ्लेक्ट होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? इट इज इन द specific direction onto the same focal line. The angles of the mirror must be adjusted to allow for the changes in the sun's elevation. So this is about the mirror strip reflector, right? So there are different mirrors which are mounted at different angles, concave mirror which are mounted on different angles, and they reflect the solar radiation which is focused on a single point, that is a focal line, right? And the angles of the mirror are adjusted to allow for the changes in the sun's elevation. तो sun का elevation जो है हमारा change होता रहता है। देखो लास्ट वाले में भी आपको मैंने जब बताया था पैराबोलिक ट्रफ कनेक्टर में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जो सन का एलिवेशन है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। तो हमें जो भी वहां पे सरफेस प्रोवाइड करते हैं, जो भी मिरर हम प्रोवाइड करते हैं एज अ कलेक्टर, हमें उस बात का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो एडजस्टेबल होना चाहिए।
बिकॉज अगर एडजस्टेबल नहीं होगा तो वो जो भी आपका रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन है, उसे कलेक्ट नहीं कर पाएगा। अब आपका जो सन का एलिवेशन है वो टाइम टू टाइम क्या होता है, वो चेंज होता है। तो हमारा जो मिरर है उसका भी एंगल हमको एडजस्ट करते रहना है। वाई? टू अलाउ दी चेंजेस इन दी सन एलिवेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द मिरर स्ट्रिप रिफ्लेक्टर। एक शॉर्ट में अगर देखें तो अ नंबर ऑफ प्लेन और स्लाइटली कर्व कॉन्केव मिरर स्ट्रिप आर माउंटेड ऑन अ फ्लैट बेस। ठीक है, एक फ्लैट बेस लिया और उस पे बहुत सारे कॉन्केव मिरर के स्ट्रिप को माउंट कर दिया। Now, the angles of the individual mirror are such that they reflect the solar radiation from a specific direction onto the same focal line. The angles of the mirrors must be adjusted to allow for the changes in the sun's elevation. ये आप देख सकते हैं, there are different mirror strip in your screen. आपको screen पे दिख रहा होगा, there are different mirror screen which are mounted at some elevation. These are your sun rays which are getting incidented on that collector surface. और ये सारे इसके एंगल्स जो है, जितने भी मिरर्स हैं, वो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो एक ही जगह फोकल लाइन पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो and these the angles are adjustable in nature because to adjust the elevation of the sun rays, right? Okay, so this was all about the your mirror strip reflector. ठीक है, मिरर स्ट्रिप मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिप्स होंगे मिरर के, एक जगह माउंट होंगे, वहां से रिफ्लेक्ट करेंगे, जो एक फोकल लाइन पे, एक फोकस लाइन पे जा करके आपका फोकस करेंगे, और उसको हम उसके एंगल्स को एडजस्ट करेंगे सो दैट हमारे सन जो हमारे सोलर रेडिएशन है उसका जो एलिवेशन है उसको हम मैच कर सकें। ठीक है, अब बात करेंगे, तीसरा था फ्रेस्नेल लेंस कलेक्टर, in which refraction type of focusing collector has been developed. It utilizes the focusing effect of a Fresnel lens as represented in figure. See, this is your Fresnel lens collector, is in which the refraction type of focusing collector has been developed, right? And it utilizes the focusing effect of a Fresnel lens as represented in the figure. For a trough type collector, the length is rectangle, about 4.7 meter in overall length and 0.95 meter in width. Okay, so जो हमारा ट्रफ टाइप कलेक्टर होता है उसका लेंस है तो क्या है, वो रेक्टेंगल है शेप में, और इट इज अबाउट 4.7 मीटर इन लेंथ एंड 0.95 मीटर इन width. So this is the diagram of the Fresnel lens collector. It consists of a Fresnel lens, okay, and the outer part shows the container, and this is your receiver pipe. And if we talk about the trough type collector, so this is hollow steel plug, and the outer surface is the evacuated space, and surrounding that surface it is heat transport fluid. Okay, so and the third layer is your absorber surface, and the last layer is your pyrex jacket. So this is all about the your Fresnel lens collector. Now moving towards the concentrating collectors, that is non-focusing type. It consists of a flat plate facing south with mirrors attached to its north and south edges. If the mirrors are set at the proper angle, they reflect the solar radiation onto the absorber plate. The mirror cut off part of the scattered radiation that would otherwise have reached the absorber plate, and only part of the scattered radiation falling on the mirrors which are reflected onto the absorber. Okay, when a number of collectors are combined in two or more rows, as they are often combined, the rows must be set further apart in the north-south direction to allow for the additional sun shading caused by the mirror extension. So this is your concentrating collector, that is the non-focusing type. It consists of a flat plate
facing south with mirrors attached to its north. Okay, the flat plate should be facing south direction and the mirrors should be attached to its north and the south edges, right? देखो जितने भी ये कलेक्टर्स हैं इसमें सबसे ज्यादा आपको एक बात का ध्यान रखना है कि उसका ओरिएंटेशन क्या है, राइट? उसके ओरिएंटेशन पे ही सब कुछ डिपेंड करेगा कि वो सोलर रेडिएशन को कितना इफिशिएंटली एब्जॉर्ब कर रहा है, बिकॉज आप सन के ओरिएंटेशन को चेंज नहीं कर सकते हो, राइट? जो भी सन का ओरिएंटेशन है वो अपने हिसाब से चेंज होता है, ठीक है? उसका एलिवेशन एक दिन में काफी बार चेंज होता है, राइट? नाउ आपका प्राइम गोल ये होना चाहिए कि आपका जो भी कलेक्टर है, जो भी आपका डिवाइस है जिससे आप सोलर रेडिएशन को कलेक्ट करना चाहते हैं, वो आपका ओरिएंटेशन उसका उसी हिसाब से हो, ठीक है? तो उस पे डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है? कभी हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे देखते हैं, ठीक है? कुछ ऐसे हैं जिसमें हमें उसका फ्लैट प्लेट जो है वो साउथ की तरफ फोकस करना चाहिए, लेकिन उसके जो मिरर्स हैं इट शुड बी अटैच्ड टू इट्स नॉर्थ एंड साउथ एजेस. ओके, इफ द मिरर्स आर set at the proper angle, they reflect the solar radiation onto the absorber plate. देखो जो हमारे मिरर्स हैं, जैसे जो कॉनकेव मिरर यूज किया, स्ट्रिप्स यूज किया, they are required to be set at the proper angle. Why? Because if they will be set at the proper angle, they will reflect the solar radiation onto the absorber plate, right? हमारे पास जो कलेक्टर्स होते हैं उसमें एब्जॉर्बर प्लेट्स होती हैं, ठीक है? और हमारे जो मिरर्स हैं अगर वो प्रॉपर एंगल पे सेट किए जाएंगे, then only they will reflect the solar radiation onto the absorber plate. And when they reflect the solar radiation onto the absorber plate, then only we can utilize these absorbed solar radiation rays for the generation of the electricity. The mirrors cut off part of the scattered radiation that it would otherwise have reached the absorber plate, and only part of the scattered radiation falling on the mirrors with be reflected onto the absorber. ठीक है, तो ये है तुम्हारा फ्लैट प्लेट कलेक्टर, ये है तुम्हारा मिरर. सी द फ्लैट प्लेट कलेक्टर इज फेसिंग टुवर्ड द साउथ एंड मिरर्स आर अटैच्ड टू इट्स नॉर्थ एंड द साउथ एजेस. ठीक है, तो ये है हमारा फ्लैट प्लेट कलेक्टर, और या तुम कह सकते हो कि कंसंट्रेटिंग कलेक्टर और नॉन फोकसिंग टाइप ऑफ द कलेक्टर, जिसमें आपका एक फ्लैट प्लेट कलेक्टर है, ठीक है, और ये साउथ की तरफ आपका इसका फेसिंग है, और जो मिरर अटैच है वो नॉर्थ और साउथ एजेस पे इसका जो मिरर है वो अटैच किया गया है. एंड द मिरर्स आर सेट एट द प्रॉपर एंगल. एंड व्हाई? बिकॉज they will reflect the solar radiation onto the absorber plate, right? The mirrors cut off the part of the scattered radiation that would otherwise have reached the absorber plate, right? So and only the part of the scattered radiation falling on the mirrors with be reflected onto the absorber. So this was all about uh, flat plate collector diagram. Now, when a number of collectors are combined into or more rows, as they often, the rows must be set further apart in the north-south direction to allow for the additional sun shading caused by the mirror extension. देखो, अगर आप इस तरह के डिवाइस को, नंबर ऑफ डिवाइसेस को अटैच करेंगे, एक लार्जर एरिया के लिए यूज करते हैं, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है, अगर 2 या 3 रो में इसका कॉम्बिनेशन करना है, तो the rows must be set further apart in the north south direction. तो जो हमारा रोज है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. क्यों? मैंने आपको पहले भी टर्फ कलेक्टर में बताया था कि जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का सोलर रेडिएशन होता है वो ज्यादा इफिशियंट होता है इन कंपैरिजन टू द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. ठीक है, इसीलिए आप देखो जो भी फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स है उसकी फेसिंग साउथ डायरेक्शन में कर रहे हैं, और उसके मिरर्स का जो है नॉर्थ और साउथ एजेस पे कर रहे हैं. ठीक है, और अगर हम 2 या 3 रोज में इसको ऐड करते हैं या कंबाइन करते हैं, तो इसके रोज को हमें किस डायरेक्शन में ओरिएंट कराना है? इट शुड बी इन दी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. व्हाई? बिकॉज टू अलाउ फॉर द एडिशनल सन शेडिंग कॉज्ड बाय द मिरर एक्सटेंशन.
देखो जो भी फंडा है इस तरह के कलेक्टर का, बस एक बात ध्यान रखना कि जो भी आपका एब्जॉर्बिंग सरफेस है, जो भी आपका कलेक्टर है, वो ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो भी सोलर रेडिएशन उस पे इंसिडेंट हो रही है, वो सोलर रेडिएशन आपका एब्जॉर्ब करना चाहिए, वो कलेक्टर प्लेट आपका वो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना चाहिए, ठीक है? जो भी मिरर है वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए उस एब्जॉर्बर सरफेस को। जब भी हमारी इंसिडेंट रे उस मिरर पे इंसिडेंट कर रही है, तो वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए किस पे? एब्जॉर्बिंग सरफेस पे, ठीक है? नाउ अब वो डिपेंड करेगा कि आपका जो मिरर है उसका ओरिएंटेशन क्या है, उसका प्रॉपर एंगल क्या है। बिकॉज जब आपका प्रॉपर एंगल पे वो ओरिएंटेड होगा या माउंटेड होगा, तो जो भी आपका मिरर आप यूज कर रहे हो या स्ट्रिप ऑफ मिरर यूज कर रहे हो या कॉनकेव मिरर आप यूज कर रहे हो, तो जो भी एलिवेशन है सन का, ठीक है, उसके हिसाब से जो भी रेज आपकी इंसिडेंट होगी आपके सरफेस पे, वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी और वो एब्जॉर्बिंग सरफेस पे एब्जॉर्ब होगी, जो बाद में हम उस एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। So this is actually the principle behind the working of the solar collector. Okay, so now moving toward the compound parabolic concentrator, that is CPC. The CPC is a trough-like arrangement of two focusing parabolic mirror. देखो ये जितने भी टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स के मैं आपको लाइन फोकसिंग और पॉइंट फोकसिंग के बारे में बताऊंगा, ये सब का सब डिफरेंशिएशन बस इतना है, इसका अरेंजमेंट का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है? कोई ट्रफ लाइक स्ट्रक्चर है, कोई दो पैराबोलिक ट्रफ लाइक स्ट्रक्चर है, किसी में स्ट्रिप ऑफ मिरर्स कनेक्टेड है, ठीक है? किसी में आपका मिरर्स जो है वो एक रो में कनेक्टेड है। तो ये, और ये क्यों किया जाता है? इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि ज्यादा से ज्यादा सोलर रेडिएशन को हम एब्जॉर्ब करें, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए हम इसका अरेंजमेंट उस तरह से करते हैं कि हमारा जो सोलर रेडिएशन है वो इजिली एब्जॉर्ब हो जाए। जैसे अभी हमने लास्ट वाले टाइप में पढ़ा कि ये इसमें जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ओरिएंटेशन था। अब कंपाउंड पैराबोलिक कंसंट्रेटर में क्या होता है? इसका अरेंजमेंट जो है इट इज अ ट्रफ लाइक अरेंजमेंट, राइट? जो अभी हमने ट्रफ लाइक अभी पहला पढ़ाया था उसी तरह का अरेंजमेंट है, लेकिन टू फेसिंग पैराबोलिक मिरर। तो हमारी जो दो पैराबोलिक मिरर एक दूसरे को फेस करते हुए इस अरेंजमेंट में यूज की जाती है। CPC is a non-focusing, but solar radiation from many directions is reflected toward the bottom of the trough. Because of this characteristic, a large proportion of the solar radiation, including diffuse, that is scattered radiation, entering the trough opening is collected on the smaller area. देखो ये है आपका डायग्राम। आप डायग्राम में देख सकते हो कि दो पैराबोलिक शेप का यूज किया जा रहा है, ठीक है? और इस पे जैसे ही आपका सोलर रेडिएशन इंसिडेंट कर रहा है, वो सोलर रेडिएशन जो डिफ्यूज्ड है और जो स्कैटर्ड रेडिएशन है, वो ट्रफ की ओपनिंग में एंटर करके इट इज बीइंग कलेक्टेड ऑन द स्मॉलर एरिया, एंड दैट स्मॉलर एरिया इज द एब्जॉर्बर। एंड दिस इज योर ऑल अबाउट द compound parabolic concentrator. Okay, and what are the advantages? There are several advantages. The first one is there is no need for tracking. The efficiency for accepting diffuse radiation is much larger than the conventional concentrator. Its concentration ratio is equal to the maximum value possible for a given acceptance angle. So this was all about the line focusing collector. So हमने इस कल स्टार्ट किया था आपका दूसरे टाइप का कंसंट्रेटर, इट वाज, वेट अ सेकेंड, कल मैंने स्टार्ट किया था फोकसिंग टाइप, दैट इज कंसंट्रेटिंग कलेक्टर। उसका सब क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था, लाइन फोकसिंग और पॉइंट फोकसिंग।
लाइन फोकसिंग के अलग सब क्लासिफिकेशन आपको बताया, पैराबोलिक है, मिरर है, फ्रैक्शनल है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर है और कंपाउंड पैराबोलिक कंसंट्रेटर है। तो लाइन फोकसिंग कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे पॉइंट फोकसिंग के बारे में, ठीक है। तो विल स्टडी अबाउट दी पॉइंट फोकसिंग। तो पॉइंट फोकसिंग कलेक्टर पैराबोलाइडल टाइप, ठीक है। A parabolic dish collector brings solar radiation to a focus at a point, actually a small central volume. A dish 6.6 meter in diameter has been made from about 20 meter curved mirror segment forming a paraboloidal surface. The absorber located at the focus is a cavity made up of zirconium copper alloy with black chrome selective coating. The heat transport fluid flow into and out of the absorber cavity through pipes bonded to the interior. The disc can be turned automatically about two axes, that is up and down and left and right. So this is your point focusing. इसको कहते हैं हम पैराबोलाइडल शेप, और इसमें एक पैराबोलाइडल डिस्क होती है, ठीक है। पॉइंट फोकसिंग कलेक्टर को हम क्या कहते हैं, पैराबोलाइडल टाइप, ठीक है। तो पैराबोलाइडल टाइप में एक पैराबोलिक डिस्क होता है, ठीक है। दिस पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर brings the solar radiation to a focus at a point, actually a small central volume. तो ये आपका जो डायग्राम में एक पैराबोलाइडल डिश आपको दिख रहा है, वो पैराबोलाइडल डिश क्या अलाउ करता है कि जो आपकी इंसिडेंट रे उस पे इंसिडेंट हो रही है, वो एक एक स्मॉलर एरिया पे एक स्मॉलर एरिया पे फोकस करती है, मतलब वो एक तरह से अब्जॉर्बर सरफेस हो जाता है, ठीक है। एंड इट एक्चुअली ब्रिंग्स अ स्मॉल सेंट्रल वॉल्यूम, and this is 6.6 meter in diameter and is made about 20 meter curved mirror segments forming a paraboloidal surface. तो इसका diameter कितना होता है, 6.6 meter, और it is made up of 20 meter curved mirror segment forming a paraboloidal surface. The absorber located at the focus is a cavity made of zirconium copper alloy. तो जो आपको ये absorber दिख रहा है, ये इसका जो मटेरियल होता है, ये किसका होता है, जिरकोनियम कॉपर अलॉय, ओके, विथ ब्लैक क्रोम सेलेक्टिव कोटिंग। और इस पे किस तरह की कोटिंग होती है, इट इज अ ब्लैक क्रोम सेलेक्टिव कोटिंग। The heat transport fluid flow into and out of the absorber cavity through pipes bonded to the interior. The dish can be turned, और ये जो डिश है, it can be turned automatically about two axes, that is up down and left and right. तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि ये जो आपका डिश है एक तरह से एडजस्टेबल है, तो ये हम सन के एलिवेशन और ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग अपने डिश का ओरिएंटेशन कॉन्टिन्यूसली चेंज कर सकते हैं। तो जब हम अपने डिस्क का ओरिएंटेशन कॉन्टिन्यूसली चेंज करेंगे, तो इसकी ओरिएंटेशन या उसकी फेसिंग कभी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी और कभी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन होगी। तो जब भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से हमको सोलर रेडिएशन, मैक्सिमम सोलर रेडिएशन इस पे इंसिडेंट करेंगे। तो जब मैक्सिमम सोलर रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे, तो वो एक स्मॉलर सरफेस पे, एक स्मॉलर वॉल्यूम पे आपका जाके फोकस करेंगे, और उसको हम कहते हैं एब्जॉर्बर सरफेस। एंड इट इज मेड अप ऑफ जिरकोनियम कॉपर अलॉय, जिसपे एक ब्लैक क्रोम सिलेक्टिव कोटिंग होती है, और वहां पे ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। एंड दिस इज दिस एब्जॉर्ब इंसिडेंट रे आर फाइनली converted into electrical energy or into a heat energy. Okay, the concentration ratio is about 30 to 100 or higher would be needed to achieve the temperature range 300 to 500 degrees centigrade or higher. So this was all about your point focusing collector, and I have told you that it is paraboloidal type. अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमें दूसरा जो टाइप है वो हमको मिलेगा सेंट्रल रिसीवर कलेक्टर, ठीक है। नाउ अगेन
It consists of a considerable number of mirror distributed over an area on the ground. Each mirror, called a helostat, can be steered independently about two axes so that the reflected solar radiation is always directed towards on the absorber mounted on a tower. ठीक है, देखो जितने भी कलेक्टर पढ़ोगे सबका डिफरेंशिएशन उसके ओरिएंटेशन और उसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ही है, प्रिंसिपल सबका एक है। जितने भी इंसिडेंट रेज हैं उनको हमें रिफ्लेक्ट करके एब्जॉर्बर सरफेस पे उन सारे रेस को एब्जॉर्ब करना है, तभी वो आपका सरफेस हीट अप होगा और उसको हम फाइनली कन्वर्ट कर सकेंगे यूजफुल एनर्जी के लिए या तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। यही है ऑब्जेक्टिव, यही है इसका फंडामेंटल। ठीक है, अब हम सेंट्रल रिसीवर अगर कलेक्टर के बात करते हैं तो ये क्या होता है इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ मिरर। ठीक है, बहुत सारे मिरर्स होते हैं एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन एरिया ऑन दी ग्राउंड। एक ग्राउंड के एक एरिया पे बहुत सारे मिरर आपका जो है कंसिडरेबल नंबर ऑफ मिरर दैट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ईच मिरर इज नोन एज helostat, can be steered independently about two axes so that the reflected solar radiation is always directed on the absorber mounted on a tower. So this is basically the arrangement. बहुत सारे आपके मिरर्स माउंटेड हैं एंड दिस इज नोन एज हेलियोस्टेट। ये सन रेज आपकी इंसिडेंट कर रही है, ठीक है, और ये फाइनली एब्जॉर्बर सरफेस पे जा करके रिफ्लेक्ट होने के बाद एब्जॉर्बर सरफेस पे जो माउंटेड है एक टावर पे उस पे एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, तो ये है आपका सेंट्रल रिसीवर कलेक्टर जो कि हम सेंट्रली चीजों को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा कलेक्टर के बारे में। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द कलेक्टर। आगे हम पढ़ेंगे सोलर एनर्जी स्टोरेज के बारे में। ठीक है, without before going to the solar energy storage process, let me have a overview of this collectors which I have told you in the last lectures, in the previous lectures. So ये बेसिकली मैंने आपको एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में जब मेरा पहला लेक्चर था यूनिट 2 के बारे में, सोलर थर्मल एनर्जी के बारे में। तो सोलर थर्मल एनर्जी स्टार्ट करते ही मैंने आपको बताया कि इसका फंडामेंटल यही है कि हम सोलर रेडिएशन को हीट एनर्जी में और इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और जिससे कन्वर्ट करते हैं जैसे उसके सोलर रेडिएशन को कलेक्ट करने के प्रोसेस को, उसके डिवाइस को हम कहते हैं सोलर एनर्जी कलेक्टर। ठीक है, और इसका जो प्रिंसिपल है जो कन्वर्ट करने का सोलर रेडिएशन को हीट एनर्जी में, ये बेसिकली डिपेंड करता है आपका एक फिनोमिना जिसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसके बाद मैंने बताया कि दो तरह के होते हैं कलेक्टर, जिसमें आपका होता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर और दूसरा होता है आपका फोकसिंग टाइप। तो पहला होता है नॉन फोकसिंग टाइप दैट इज फ्लैट प्लेट कलेक्टर और दूसरा होता है फोकसिंग टाइप। ठीक है, नॉन फोकसिंग को हम नॉन कंसेंट्रेटिंग भी कहते हैं और फ्लैट प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, और जब हम बात करते हैं हमारे कंसेंट्रेटिंग टाइप या फोकसिंग टाइप तो उस वो फ्लैट प्लेट कलेक्टर नहीं होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको एक फ्लैट प्लेट कलेक्टर का एक डायग्राम दिखाया था और उसके एसेंशियल कंपोनेंट्स को भी बताया था और उसका क्या रोल होता है वो भी आपको बताया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये दो तरह का होता है, टिपिकल लिक्विड कलेक्टर और एयर कलेक्टर। ओके, तो उसमें मैंने फिर बताया था कि टिपिकल लिक्विड कलेक्टर और एयर कलेक्टर के कंपैरिजन में हम एयर कलेक्टर यानी कि सोलर एयर हीटर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ये प्रीडोमिनेट करता है। और रीजन भी मैंने बताया था क्योंकि ये करोजन इफेक्ट को मिनिमाइज करता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो आपका बेसिकली ये जो था टिपिकल एयर कलेक्टर वो
दो तरह के थे और वो किस पे डिपेंड कर रहे थे, पोरस और नॉन पोरस टाइप एब्जॉर्बर प्लेट कलेक्टर। ठीक है, उसके बाद इसको डिफाइन करने के बाद मैंने आपको बताया, उसके डायग्राम मैंने दिखाए थे, उसका बेसिक प्रिंसिपल आपको बताया था कि पोरस टाइप क्या होता है और नॉन पोरस टाइप क्या होता है, और एयर हीटर ही हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एप्लीकेशन बताया था सोलर एयर हीटर का। देन मैंने लास्ट और आज के लेक्चर में आपको बताया कंसंट्रेटिंग, दैट इज फोकसिंग टाइप ऑफ द सोलर कलेक्टर। उसमें भी मैंने आपको बताया कि ये इसका बेसिक डिफरेंस क्या होता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर और आपका फोकसिंग और नॉन फोकसिंग में क्या डिफरेंस होता है। नॉन फोकसिंग में जो हमारा कलेक्टर एरिया होता है, रिसीवर एरिया होता है, वो सेम होता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देन मैंने आपको बताया कि कंसंट्रेटिंग कलेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें लाइन फोकसिंग और पॉइंट फोकसिंग। देन लाइन फोकसिंग में 5 डिफरेंट टाइप्स के मैंने बताए, और मैंने ये भी बताया कि सब कुछ ओरिएंटेशन और अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, देन आपको इसको डिफाइन करने के बाद मैंने आपको बताया कि पॉइंट टाइप क्या होता है और लाइन टाइप क्या होता है। पॉइंट टाइप में आपको मैंने बताया कि स्फेरॉइडल शेप होता है, राइट। तो और ओरिएंटेशन हमारे मिरर्स का क्या होना चाहिए, तो वो याद रखना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जैसे ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, एब्जॉर्बर सरफेस जो है वो किस मटेरियल का होना चाहिए, उसका माउंटेड कैसे वो होना चाहिए, किस डायरेक्शन पे माउंटेड होना चाहिए, किस एंगल पे माउंटेड होना चाहिए, और सो दैट मैक्सिमम सोलर रेडिएशन को हम रिफ्लेक्ट करके हम एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो इस लेक्चर में यहीं तक है। कल का जो लेक्चर होगा, आई विल डिस्कस यू अबाउट दी सोलर एनर्जी स्टोरेज। कलेक्ट तो कर लिए, लेकिन अब स्टोरेज कैसे करें इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये पूरा यूनिट सोलर थर्मल एनर्जी के बारे में है, उसके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बारे में, उसके कलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सोलर रेडिएशन को हमने कलेक्ट तो कर लिया, उसके डिवाइस से कलेक्ट तो कर लिया, अब स्टोर कैसे करेंगे ये भी हमको कल देखना है। ठीक है, तो सोलर एनर्जी स्टोरेज के बारे में हम कल देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर। विल लुक about the solar energy storage in tomorrow's lecture. Thank you.